subscribe my channel to give me a lot of increase. Today's topic is exercise 3.8 class 11th trigonometric function. We have studied in previous lecture up to question number 9. Today we start from question number 10, exercise 3.8. Question number 10 is cos 3x plus cos 5x, cos 3x plus cos 5x plus cos 7x plus cos 7x plus cos 15x is equal to 4 cos 4x cos 5x cos 6x. We have taken LHS and we have to prove LHS is equal to RHS. In the RHS part we see that 6x, to adjust first and last, second and a third, such that we got 6x in the terms of angle. We write it cos 15x plus cos 3x plus cos 7x plus cos 5x. Here we apply cos c plus cos d, cos c plus cos d. Cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Again cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 or cos c minus d by 2. 2 cos 9x cos 6x, 2 cos 6x or cos x. Taken common cos 6x, 2 cos 6x, 2 cos 6x common, cos 9x plus cos x. Again apply cos c plus cos d, 2 cos 6x, 2 cos c plus d by 2, 9x plus x by 2 or cos 9x minus x by 2. 2 cos 6x or 2 cos 5x or cos 4x. We have to prove LHS is equal to RHS. 4x we write further and 6x in the last. So LHS is equal to RHS. I hope you understand the question. Next question, question number 11. Question number 11 is cos alpha plus cos beta, cos alpha plus cos beta whole square plus sin alpha plus sin beta whole square, 4 cos square alpha minus beta by 2. We taken LHS and we prove LHS is equal to RHS. LHS cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 or cos c minus d by 2 whole square plus sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 or sin c minus d by cos c minus d by 2 whole square. We expand the square. We got 4 cos square alpha plus beta by 2 cos square alpha minus
बीटा बाई टू, 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू cos square alpha minus beta by 2. Taking common 4 cos square alpha minus beta by 2 in both. 4 cos square alpha minus beta by 2. What is left? Cos square alpha plus beta by 2 or sin square alpha plus beta by 2. Cos square theta plus sin square theta is equal to 1. 4 cos square alpha minus beta by 2 or 1. LHS is equal to RHS. Cos C plus cos D 2 cos C plus D by 2 sin C plus sin D 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. Expanding the square and taking common 4 cos square alpha minus beta by 2 in both term. Inside we get cos square alpha plus beta sin square alpha plus beta by 2 sin square theta plus cos square theta is equal to 1. We get the required result. Next question number 12. In question number 12 we see that cos A plus cos 120 plus A plus cos 120 minus A equals to 0. We have to prove that LHS is equal to 0. We apply the formula cos C plus cos D last two term. Cos A, cos C plus cos D 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. Cos A plus 2 cos 120 or cos cancel out 120, 2A by 2 also cancel out 2. Cos A plus 2 cos pi minus 60 or cos A. Cos A plus 2 cos pi minus theta. In second quadrant cos is negative, so minus cos 60 or cos A. Cos A minus cos 60 is 1 by 2 and cos A. Also cancelling this we get the required result. Applying cos C plus cos D in last two term, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. Cos 120 is equal to minus cos 60. Cos A, value of cos 60 1 by 2, cancel out 1 by 2, cos A minus cos A, cancelling, and we get the required result. Next, three parts are same as above. Second question is sin alpha plus sin alpha plus 2 pi by 3 sin alpha plus 2 pi by 3 plus sin alpha plus 4 pi by 3 alpha plus 4 pi by 3 sin alpha plus sin 3 alpha plus 2 pi by 3 plus sin 3 alpha plus 4 pi or upon 3. We apply the formula on last two terms, sin C plus sin D, sin alpha 2 sin C plus D by 2 और होल के नीचे क्या है बेटा 3, तो 3 2 जा 6 प्लस साइन C माइनस D by 2 साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D by 2 cos C माइनस
डी बाई टू, साइन अल्फा प्लस 2 साइन 6 अल्फा प्लस 6 पाई बाई 6, taking common 6, the term left alpha plus pi or pi plus alpha plus cos minus 2 pi by 2 minus cos 2 pi by 2 minus cos pi, sin alpha plus 2 sin alpha plus pi, pi plus alpha, in third quadrant sin is negative, तो ये हो जाएगा आपका cos c माइनस डी बाई टू माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस पाई। इसको आगे सोल्व करते हैं तो साइन पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा और प्लस कोस ऑफ पाई। थ्री और 3 6 अल्फा। एक मिनट बेटा, इसको यहीं से दोबारा सोल्व करते हैं एक बार। कोस साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इसके नीचे बेटा 6 आएगा क्योंकि 3 था और 2 हमने छोड़ दिया था, अब 6 हो जाएगा। अब सही है बिल्कुल। साइन अल्फा प्लस 2 साइन 6 अल्फा प्लस 6 पाई अपॉन 6 प्लस कोस माइनस 2 पाई बाई 6, इट मीन्स पाई बाई 3, कोस ऑफ माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस 2 साइन 6 कॉमन ले लेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा और प्लस ये प्रोडक्ट में होता है बेटा साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस, तो प्रोडक्ट में ये हो जाएगा कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 इट मीन्स कोस 60। कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी साइन पाई प्लस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू बेटा 1 होती है। इससे इसको काट देंगे, वी गेट द रिक्वायर्ड result. Next question. In next question, we apply cos x plus cos x plus 2 pi by 3 x plus 2 pi by 3 plus cos x plus 4 pi by 3 is equal to 0. As we do previous question, cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 कैंसिल आउट होके सारा उसी तरह से बेटा ये भी आप सोल्व कर सकते हो। क्या आ जाएगा आपका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2 साइन गामा प्लस बीटा बाई 2। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो बेटा पहले दोनों पर साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2।
इन दोनों के ऊपर लगाते हैं साइन सी माइनस साइन डी, क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहां पर देखिए 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 और साइन माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। साइन ऑफ माइनस थीटा, इन दोनों में से बेटा माइनस कॉमन ले लूंगा तो प्लस हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला माइनस आगे आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस माइनस को हटा दूं। अब इन दोनों में से देखो साइन अल्फा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। ये टर्म अपने पास बच जाती है। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 साइन कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस इसके ऊपर बेटा कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 2 साइन सी प्लस सी आपका ये है और सी प्लस डी आपका ये है और अपोन में 2 हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। यहां से आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये आगे बेटा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये हो जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने 2 आ गया तो यहां से ये कट जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पर आएगा तो 4 हो जाएगा। इस 2 को कॉमन ले लेता हूं तो इस 2 से इसको काट दूंगा, क्या बच जाएगा अल्फा प्लस गामा बाई 2 साइन यहाँ पर ये जो 2 था ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये साइन इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा, इसके नीचे 2 आ गया तो अल्फा से अल्फा कट गया 2 बीटा बीटा और बीटा 2 बीटा और 2 गामा, तो ये हो जाएंगे आपके 2 बीटा प्लस 2 गामा और ये 2 पर आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। 2 को कॉमन ले लेता हूं तो इसको मैं काट दूंगा, क्या बच जाएगा साइन बीटा प्लस गामा बाई 2। ये आपका क्वेश्चन हमने इसके बराबर प्रूव करके दिखाया। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो है बेटा कोसिकेंट ए प्लस
कोट ए सीकेंट ए, सॉरी ये है आपका सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसिकेंट बी प्लस सीकेंट बी, कोसिकेंट बी प्लस सीकेंट बी। और इससे आपको दिखाना है tan a tan b इज इक्वल टू कोट a प्लस बी बाई टू, कोट a प्लस बी बाई टू। ये आपका हो गया 1/sin a प्लस 1/cos a और 1/sin b प्लस 1/cos b। इसको सोल्व करेंगे बेटा, आ गया cos a प्लस sin a अपॉन sin a cos a, और ये आ गया cos b प्लस sin b अपॉन sin b cos b। ये यहां पर लेके आता हूं, ये ऊपर लेके जाता हूं। इसको बेटा ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को इधर tan a और tan b की टर्म चाहिए। ये आ गया 1/sin a माइनस 1/sin b और 1/cos b माइनस 1/cos a। एलसीएम लेता हूं, इसका एलसीएम क्या है, सही है 1/एलसीएम आ गया sin a sin b। इससे इसको करता हूं sin b माइनस sin a, और ये इधर से आ जाएगा बेटा cos a माइनस cos b अपॉन cos a cos b। इसको इसके नीचे लेके आता हूं, इसको इधर लेके जाता हूं, तो देखो ये आ गया sin b माइनस sin a अपॉन cos a माइनस cos b इज इक्वल टू sin a sin b अपॉन cos a cos b। sin a बाई cos a sin b बाई cos b, तो इधर आ गया बेटा tan a tan b। एक साइड आ गई, ये इससे आप प्रूव कर देंगे तो दोनों साइड है वो सोल्व हो जाएंगी। sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाइए, 2 sin 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया cos बाई sin कोट बीटा प्लस अल्फा बाई 2 या अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आज के लिए बेटा इतना ही, कल एक्सरसाइज 3 पॉइंट आगे से इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।